Hi, I am Dr. Sonu Balhara, Secretary, Haryana Chapter of Indian Fertility Society. Every patient who walks into our OPD has many questions and queries in their mind regarding the treatment of IVF and infertility. So, we, the team of Haryana Chapter of Indian Fertility Society, thought to come out with a series of videos to clarify these misconceptions of our patients. The first misconception which most of the patients have is that IVF is never successful in the first attempt. No, this is not true. On an average, in the first attempt of IVF, if a woman is less than 35 years, the average of success comes out to be 50 to 55%. This success rate decreases as the patient's age increases. एक बहुत ही मासूम सा सवाल जो मेरी एक पेशेंट ने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर, अब आप मुझे बेटा हो गया है लेकिन मेरी सास मुझे हर समय कहती रहती है कि ये तो दवाइयों से बना हुआ बच्चा है, तो ये तो कमज़ोर रहेगा ही। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। हमारी जो दवाइयाँ हम पेशेंट्स को देते हैं वो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और पूर्ण रूप से बायोलॉजिकल होती हैं, और यदि उसको गर्भधारण हो जाता है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा किसी भी प्रकार के दवाओं के ना तो प्रभाव में होता है और ना ही उसमें किसी तरह के मूड स्विंग्स या भविष्य में किसी भी प्रकार के विकार आने की संभावना होती है। बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है। अतः अपने मन में ऐसी किसी भी धारणा को ना लाएं। There is a lot of fear among couples who undergo IVF that can there be mixing of gametes in IVF lab. So in IVF lab, we follow strict guidelines so that it does not happen. In IVF lab, we identify the couples not by their name but by their barcode and ID number. Also during the procedure, there is a double witnessing system that there are two embryologists in the IVF lab to ensure the identity of the patient. And secondly also, the dishes are being identified by the barcoding system so that this does not happen. So don't worry about that. Go ahead with IVF. Let all the standard labs follow these guidelines. पेशेंट्स कई बार सोचते हैं और पूछते भी हैं कि क्या सरोगेट मदर का कुछ जेनेटिक पार्ट बच्चे में जाता है कि बच्चा हमारे जैसा दिखाई देगा या सरोगेट मदर जैसा दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि सरोगेट मदर का कुछ जेनेटिक पार्ट बच्चे में जाता है, क्योंकि सरोगेट मदर के अंदर जो भ्रूण स्थापित किया जाता है वो जेनेटिक पेरेंट्स का होता है, यानी कि अंडा और स्पर्म, अंडा और शुक्राणु जेनेटिक पेरेंट्स के होते हैं। सरोगेट मदर बच्चे का गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है, परंतु उसका कुछ भी जेनेटिक पार्ट बच्चे के अंदर नहीं जाता है। धन्यवाद। Myths associated with IVF is that IVF is a very expensive procedure. To a certain extent, yes. In the beginning, we used to have medicines which were very expensive, usually used for IVF. But now we have cheaper options for IVF as well. Modified natural cycle and natural cycle IVF are cheaper alternatives of IVF, where we use minimum medicines and injections to make eggs and perform IVF. So IVF is not always expensive. Thank you. आज हम चर्चा करते हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी की। ये धारणा बहुत से लोगों के मन में होती है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी हमेशा हाई रिस्क ही होती है। जी नहीं, ये धारणा ठीक नहीं है। आईवीएफ प्रेगनेंसी बहुत बार नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही बिहेव करती है, बट हाँ, कुछ परिस्थितियों में जैसे कि एल्डरली पेशेंट, ऑलरेडी हैविंग हाई बीपी, डायबिटीज, इन सब सिचुएशन में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्पेशली लास्ट 2 महीने में विजिट्स भी रूटीन से थोड़ा ज्यादा हो सकती है। इसलिए एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं ये सलाह उन कपल को दूंगी जिनको आईवीएफ की जरूरत है कि आप ये डिसीजन थोड़ा टाइमली ले ले, सो दैट लेट एज में एज रिलेटेड रिस्क भी ऐड हो जाते हैं। For an IVF generally have this doubt in their mind that if they undergo IVF,
there's high probability that their child might have any birth defect or congenital abnormalities. It is not really true. See, patients who are resorting to IVF are generally older and they have some problem in them because of which they are not able to conceive. And the higher risk which are being portrayed are not just because of the technique what we are using, it is mainly because of the patient characteristics. पेशेंट्स सोचते हैं कि हम आईवीएफ के दौरान के थ्रू कभी भी कंसीव कर सकते हैं इवन एट द एज ऑफ 40. नो, दिस इज रॉन्ग. वी फीमेल्स आर बोर्न विद सर्टेन पूल ऑफ एग्स एट अ बर्थ. ये एग नंबर्स कभी भी इंक्रीज नहीं होता, बल्कि हमारी उम्र के साथ साथ ये एग नंबर कम होता रहता है, प्लस एग की जो क्वालिटी होती है ये खराब होती रहती है. अगर हम 30 साल की उम्र की लेडी के संग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास केवल 13% ऑफ दिस oocyte pool रह जाता है at the age of 30 and this decreases to almost 3% at the age of 40. Even with the age grows, the genetic abnormalities in the egg also increases from 25% in a female who is less than 30 years of age to almost 80% in a female who is 40 years of age. हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है या एक से ज्यादा बच्चे ही होते हैं. तो दोस्तों ये एक मिथ है, गलत धारणा है. आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद हमारा ट्विन प्रेगनेंसीज का रेट बढ़ जाता है, ये सच है, लेकिन वो सिर्फ बढ़ता है, 100% नहीं होता है. नॉर्मल अगर हम कंसेप्शन की बात करें, जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी का रेट 5 से 6% होता है और यही रेट बढ़कर 30% पर पहुंच जाता है जब आप आईवीएफ ट्रीटमेंट लेते हैं.